नमस्कार, हर खबर पंजाब देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों की ओर। बैंक लोन न चुकाने के कारण एक परिवार के घर पर कब्जा करने आए बैंक अधिकारियों के सामने किसान खड़े हो गए और किसानों ने परिवार का समर्थन किया। मामले को लेकर परिवार के एक सदस्य ने बताया कि मेरे पिता ने 2019 में बैंक से 15 लाख रुपए का लोन लिया था, जिसके एवज में बैंक ने उसकी इंश्योरेंस भी की थी। लेकिन 2021 में पिता की मौत हो गई और लोन नहीं चुका पाए और न ही बैंक ने इंश्योरेंस का कोई लाभ दिया। इस बीच 8 लाख के करीब बैंक हमसे वसूल चुका है, लेकिन फिर से बैंक की ओर से घर को खाली करने का नोटिस दिया गया है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर उन्होंने एक पोस्ट साझा की। इस बीच मेरी किसान जत्थेबंदी से बातचीत हुई, जिन्होंने मेरा साथ दिया और हमारे घर का कब्जा होने से रुकवा दिया। फादर साहब ਸੀਗਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2019 ਚ ਲੋਨ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਤੇ 2021 ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਲੇਮ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਉਹਦੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸੀਗੀ 2019 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ 1,22,740 ਰੁਪਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੇਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਧੱਕੇ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਤੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੇਮੈਂਟ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ 1,22,000 ਰੁਪਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ HDFC ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਲੋਨ ਹੈ ਜੀ, HDFC ਅਰਗੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮਕਾਨ ਖੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, 2 ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਨੋਟਿਸ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਾ ਬੈਂਕ ਤੋਂ HDFC ਬੈਂਕ ਤੋਂ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ 14 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਤਲਬ ਭਰ ਚੁੱਕੇ। 2019 ਚ ਲੋਨ ਲੈਣੇ, 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ 2 ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਟੀ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬੇਟੇ ਦੀ 18 ਸਾਲ ਆ ਤੇ ਗੁੜੀਆ ਦੀ 14-15 ਸਾਲ ਬਣਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਆਪਦੇ ਖਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਆਟਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਪੱਕੂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ 14 ਲੱਖ ਦਾ ਲੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਰਕੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਲੋਨ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ 2019 ਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2021 ਚ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 19 ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਨ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ 14-15 ਲੱਖ ਦਾ ਘਰ ਤੇ ਲੋਨ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਲੋਨ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਘਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸ਼ਤ ਭਰੀਆਂ ਨੇ। 18,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਸੀਗੀ। 2 ਸਾਲ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ ਤਾਂ 4 ਲੱਖ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਹੈ। 4 ਲੱਖ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਲੱਖ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਟੋਟਲੀ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲੇ ਵੀ 8 ਲੱਖ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡੈਡੀ ਨੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹਜੇ तक। साउथ अफ्रीका में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में पंजाब की बेटी चंदीप कौर ने कराटे में सिल्वर मेडल हासिल किया, जिससे उनके परिवार में खुशी का माहौल है। उनके कोच ने कहा कि वो पंजाब कराटे में अकेली ऐसी खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने कराटे में सिल्वर मेडल जीता है। तो वहीं चंदीप कौर ने कहा कि वे बहुत खुश हैं। अब वो आगे अभ्यास कर रही हैं ताकि आगे आने वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले सके और बेहतर प्रदर्शन कर सके। तो उनके माता पिता अपने बच्चे की उपलब्धि पर खुश नजर आ रहे हैं। उनके माता पिता ने कहा कि उनकी बेटी कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल लेकर आई है। ऐसा करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अपने कोच और शिक्षकों की कड़ी मेहनत और अपनी बेटी की कड़ी परिश्रम से प्रैक्टिस की बदौलत और मेडल लाने में सफल रही। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे बच्चे ने मीन्स बहुत सारे एफर्ट्स किए। सुबह 5 बजे उठ के प्रैक्टिस के लिए जाना, इवन इसको मैंने मीन्स इसकी फैसिलिटी के लिए हमने एज ए पेरेंट्स
काफी जैसे कार वगैरह दे दी थी कि चलो करे कि जाए, जैसे एकेडमी में प्रैक्टिस होती है, बट वो लास्ट कुछ टाइम पहले वो खराब होगी, बट इसने पीछे हार नहीं मानी, स्कूटर पे काफी दूर तक जाना एंड देन आना, कोई गर्मी नहीं, कोई सर्दी नहीं, कुछ नहीं देखा। इसका काफी एफर्ट, काफी हार्ड वर्क है इसके पीछे। डाइट का इसका ध्यान रखना होता था एंड देन प्रैक्टिस कोचेस ने पूरा हार्ड वर्क किया है। थैंक्स टू कोचेस, थैंक्स टू चंद और थैंक्स टू ऑल एवरीवन। हमारी फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा इसके साथ, और मैं यही मैसेज दूंगी कि हर कोई पेरेंट्स अपनी गर्ल्स को प्लीज प्लीज सपोर्ट करे, वट एवर शी वॉन्ट टू डू इन देयर लाइफ। मैं स्पेशली थैंक करूंगा कोचेस का, जिन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। मतलब मैं सोच भी नहीं सकता था भी बच्चा मेरा इस लेवल पे जाएगा या ये करेगा, पर राजीव सर, प्रकाश सर अमेजिंग, मतलब इन्होंने बहुत ज्यादा किया है। कॉलेज का भी बहुत ज्यादा साथ है, उन्होंने भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस के लिए सपोर्ट दिया है। तो मैं स्पेशली थैंकफुल हूँ इन कोचेस का, फैमिलीज का, जिन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। जितने बच्चे हैं और भी सब आजू बाजू खड़े हैं, सबका बहुत साथ दिया है सबने। सर लुधियाने का नाम रोशन किया है। मैं तो बहुत खुशी है भी मैं बयान ही नहीं कर सकता। मेरा आप दा ड्रीम सी, इसे चक्कर च मैं 3-4 साल हो गए दे नाल रेगुलर टच भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोचेस नाल सारा कंट्रीब्यूट करके सारा कुछ सेटल करना, ते बस होपफुली गॉड ने सुन ली ते आज ये करिश्मा हो गया। सर ये तो प्राउड मोमेंट होती है जब बच्चा खेल के आता है, कोच के लिए बहुत खुशी की बात है, और हमारी इस पे बहुत वर्कआउट होती है, तो ये रिजल्ट बहुत अहम रहता है कोच के लिए भी और बच्चे के लिए तो है ही। किस तरह की मेहनत रहती है बच्चे की? मतलब सर हमारे एकेडमी से एक ही लड़की गई है, हमारे एसोसिएशन से भी। पूरा पंजाब से? हाँ, पंजाब से तो अभी लड़की एक ही है, और बहुत अच्छा लगा, अच्छा खेल के आई है, और सभी ने मिलकर वर्कआउट किया है। कि कॉलेजेस में भी और भी कोचेस ने, हमारे डिफरेंट एकेडमी है, और इनके साथ भी फाइट करने वाले बच्चों की भी बहुत मेहनत है। किस तरह मेहनत रहती थी लड़की चंदू, किस तरह मेहनत सर करती थी? सुबह भी हमें टाइम देना पड़ता था, हमें भी अपने स्कूल्स वगैरह भी ऑफ करके उनको क्लास के लिए टाइम देना पड़ता था। मैं खुद एयरफोर्स में जॉब करता हूँ हलवारे में। तो लड़की कितनी देर टाइम देती थी? मतलब सर मॉर्निंग भी प्रैक्टिस करती थी 2 घंटा, इवनिंग भी, दोपहर में भी, जो टाइम मिल जाए, इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, पूरा दिन प्रैक्टिस ही चलना है। नाम चंदीप कौर है, मैं पंजाब से हूँ और मैंने लास्ट 5-6 ईयर से मैंने कराटे शुरू किया है, और मैंने कॉमनवेल्थ में सिल्वर मेडल पाया है, तो उसके लिए आई एम रियली थैंकफुल टू माय कोचेस, माय फादर मदर, मतलब जिन्होंने मेरे को हमेशा सपोर्ट किया है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होने दी, हमेशा मुझे मेरा फ्यूचर शो किया है कि तू कर सकती है, मुझे होप्स दिखाई हैं और मैंने वो करके दिखाया है। ये साउथ अफ्रीका में था, डरबन में, और वहाँ पे ऑलमोस्ट 25+ कंट्रीज थी, और 25+ कंट्रीज थी, बहुत सारे प्लेयर्स थे, बहुत सारे एथलीट्स थे, बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल ऑलरेडी मेडलिस्ट थे, और सबको इकट्ठे compete करना था, बहुत बड़ा कंपटीशन था। अमृतसर पुलिस ने 4 किलो हेरोइन और एक पिस्तौल के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी देते हुए डीएसपी लखविंदर सिंह ने बताया कि पुलिस ने एक बड़े ऑपरेशन के तहत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनकी सख्ती से तलाश की जा रही है। ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਤੇ ਬੈਲਟ 'ਚ, ਤੇ ਮਿਤੀ 1/12 ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਮਨਦੀਪ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ 3 ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਦੋ ਰਤਨ ਦੇ ਜਦੋਂ ਡਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਈਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਗਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੇਡ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਆ 3 ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਲਵ, ਇਹ ਬੱਚੀਵਿੰਡ ਦਾ, ਸੱਬਾ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਚੱਕ ਡੋਗਰਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਨਿੱਕ, ਇਹ ਵੀ ਚੱਕ ਡੋਗਰਾਂ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਹੈਰੋਇਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਯਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ।
वायु प्रदूषण के मुद्दे पर आप नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि एआई नहीं एक्यूआई की बात करो। मैंने आज संसद में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर बात की। मैंने ऐसे समाधान भी सुझाए जिनसे पराली जलाने पर तुरंत रोक लग सकती है। धुएं की चादर ओढ़ी हुई है और हर सांस के साथ न जाने कितनी सिगरेट और बीड़ी का धुआं हम अपने अंदर ले जा रहे हैं सर। एयर पोल्यूशन सिर्फ दिल्ली का मुद्दा नहीं है, पूरे उत्तर भारत का मुद्दा है। पोल्यूशन तो सरहद समझता नहीं सर, और आज दिल्ली से कहीं ज्यादा वायु प्रदूषण भागलपुर, मुजफ्फरनगर, नोएडा, हापुड़, विदिशा, भिवानी, भिवाड़ी, आगरा, फरीदाबाद जैसे इलाकों में है। लेकिन क्योंकि एयर पोल्यूशन का सारा दोष देश के किसान पर मढ़ा जाता है, आज मैं उस किसान की आवाज उठाना चाहता हूं। आईआईटी की एक स्टडी बताती है सर कि स्टबल बर्निंग एक कारण है एयर पोल्यूशन का, इकलौता कारण नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि सारा दोष किसान को दिया जाता है, हम पूरा साल तो कहते हैं किसान हमारा भगवान है, हमारा अन्नदाता है, लेकिन जैसे ही नवंबर का महीना आता है हम कहते हैं कि किसान क्रिमिनल है, इसको जेल में डाल दिया जाए, इस पे फाइन लगाया जाए। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं सर, कोई भी किसान जानबूझकर अपनी खुशी से पराली नहीं जलाता, मजबूरी में जलाता है। और इस साल तो हमारे सूबे पंजाब ने 70% से ज्यादा गिरावट देखी गई स्टबल बर्निंग के इंसिडेंट्स में, जहां पर मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में पराली जलाने की वारदातें बढ़ी हैं। सर, पंजाब ने धान की खेती क्यों शुरू करी? पंजाब ने धान की खेती इसलिए शुरू करी क्योंकि देश का पेट पालना था, देश में अनाज की कमी थी। धान की खेती से पंजाब का भारी नुकसान हुआ सर। हमारा पानी 600 फीट नीचे चला गया, सॉइल डिग्रेडेशन हो गई, और वो भी तब जब चावल हमारी खुराक नहीं है। हम पंजाबियों की खुराक चावल नहीं है सर। और धान की फसल कटने के बाद जो पराली बचती है, उस पराली को साफ करने के लिए किसान के पास मात्र 10 से 12 दिन होते हैं, क्योंकि अगली फसल बीजनी होती है। अगर 10 से 12 दिन में इस पराली को साफ ना किया जाए तो जो अगली फसल है उसकी यील्ड गिर जाती है। इसीलिए किसान को मजबूरन पराली जलानी पड़ती है। इसके अगर कोई सॉल्यूशंस की हम बात करते हैं, हैप्पी सीडर और पैडी चॉपर जैसी मशीनें, उन मशीनों को चलाने के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्चना पड़ता है। 2 से 3 हजार रुपए प्रति एकड़ किसान की जेब से लगता है। इसीलिए वो किसान जो आज अपनी लागत नहीं निकाल पा रहा खेती से, वो पैसा कहां से लाएगा? मजबूरी में जलाता है। और सबसे ज्यादा नुकसान तो उस किसान का और उसके परिवारों का होता है, जिसको वो जहरीली हवा में सांस लेना पड़ता है। मैं एक समाधान लाया हूं सर। अगर आज हम एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन पंजाब के किसान को या और हरियाणा के किसान को भी 2500 रुपए प्रति एकड़ देते हैं इस पराली से निजात पाने के लिए, तो पंजाब का एक भी किसान पराली नहीं जलाएगा। इसमें 2000 रुपए भारत सरकार दे, 500 रुपए पंजाब सरकार देगी, और हम इस पराली की समस्या से एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन पालेंगे। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि धान की खेती से हमें कॉटन, मक्की, पल्सेस, ऑयल सीड्स की ओर हमें बढ़ना होगा। हम एआई की तो बहुत बात करते हैं सर, एक्यूआई की बात करनी होगी। मानसा के मशहूर कबाड़ी प्रेम अरोड़ा के गोदाम में आग लग गई। पता चला है कि कटर से मजदूर कोई वाहन काट रहे थे, जिस कारण आग लग गई, जिसके चलते बड़े स्तर पर आग ने वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। आग ने 1 दर्जन से अधिक गाड़ियों को खाक कर दिया है। तो वहीं फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और जैसे तैसे कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। तो वहीं घटना के चश्मदीद ने बताया कि जब उन्होंने आग की लपटें देखी और आग का धुआं देखा तो सभी एकजुट हो गए और आग बुझाने की कोशिश की, मगर तब तक काफी वाहन जल चुके थे। ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਰੂ ਸਿੰਘ ਰੱਲੇ ਤੋਂ ਜੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ। ਮੈਂ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅੱਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੜ ਗਏ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲੇ, ਗੱਡੇ ਗੁੱਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਈ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੀ ਮਦਦ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੋਰ ਭੈਣ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਮਦਦ ਕਰੀ ਸਭ ਨੇ। ਸੜਕ ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਪ ਫੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਜੀ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਡੀਆਂ ਜੀ ਖਾਸੀਆਂ ਮੱਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਉਹ ਲੰਘਦੇ ਕਦੋਂ ਧੂਆਂ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਮਾਨਸਾ ਤੱਕ ਧੂਆਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਖੜ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਨੁਕਸਾਨ ਖਾਸਾ। अकाल तख्त द्वारा वरिष्ठ अकाली नेताओं को धार्मिक दंड तनख्वाह के तहत सुनाए जाने के एक दिन बाद शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के साथ दलजीत सिंह चीमा, बलविंदर सिंह भूंदड़, विक्रम सिंह मजीठिया, जन्मेजय सिंह सेखो, हीरा सिंह गाबरिया,
महेशिंदर सिंह ग्रेवाल ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के बाहर सेवा दी। 1 घंटे तक पहरेदारी करते रहे। इसी सजा के तहत 88 वर्षीय अकाली नेता सुखदेव सिंह ढींढसा भी उनके साथ शामिल रहे। तो वहीं सजा के दौरान उन्होंने मंदिर परिसर में साफ सफाई की, शौचालय भी साफ किए और बाद में लंगर में बर्तन धोकर अपनी सजा पूरी की। बादल और ढींढसा स्वर्ण मंदिर के बाहर अपनी सजा जारी रखेंगे। पटियाला में मान सरकार के मिशन रोजगार के तहत 485 नवनियुक्त नौजवानों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पटियाला में नौजवानों को नियुक्ति पत्र सौंपे। हेल्थ डिपार्टमेंट में 472, प्रोसिक्यूशन एंड लिटिगेशन डिपार्टमेंट में 13 नवनियुक्त नौजवानों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। आपको बता दें कि मान सरकार अब तक कुल 49,940 नौजवानों को सरकारी नौकरियां दे चुकी है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने नौजवानों को नियुक्ति पत्र सौंपे। तस्वीरें पटियाला से हैं, जहां 485 नौजवानों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने खुद 49,940 नौजवानों को नौकरियां दी हैं। मान सरकार का मिशन रोजगार इन दिनों तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी क्रम में पटियाला में कई नौजवानों को नौकरी दी गई है। तो वहीं 485 नौजवानों को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खुद अपने हाथों से नियुक्ति पत्र सौंपा। इस दौरान उन्होंने नौजवानों को संबोधित किया और आने वाले भविष्य के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने नौजवानों को अपने संबोधन में भविष्य के लिए प्रोत्साहित किया, उन्हें बढ़ चढ़कर अपने भविष्य को अच्छा बनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। पंजाब में मिशन रोजगार तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रदेश सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है कि बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए और इसी क्रम में पटियाला में 485 नौजवानों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। खबर मौजपुर से है, जहां आबकारी विभाग को ब्यास दरिया के साथ लगते गांव मौजपुर में 48 तिरपाले, 3 लोहे के ड्रम और शराब बनाने का सामान बरामद हुआ है। तो वहीं टीम की तरफ से 10,000 लीटर लाहन भी बरामद किया गया है। बता दें कि शराब तस्करों की तरफ से लाहन को तिरपालों में भरकर जमीन के नीचे दबाकर रखा गया था। पंजाब में आए दिन बम हमले की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। बीते हफ्ते ही अमृतसर में पुलिस चौकी के बाहर बम धमाका हुआ था। अब नवा शहर के थाना काठगढ़ की पुलिस चौकी आंसरों में ग्रेनेड फेंका गया है। पुलिस चौकी के अंदर ग्रेनेड मिलने से हड़कंप मच गया। तो वहीं घटना की जानकारी जैसे ही पुलिस अफसरों को मिली, पुलिस विभाग के अधिकारियों ने तुरंत मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस विभाग के अधिकारी इसको देखकर हैरान रह गए। इस घटना को लेकर एसपी जांच अधिकारी मुकेश की ओर से बताया गया कि जल्द इसकी जांच पड़ताल करके जानकारी साझा की जाएगी। खबर पटियाला से है, जहां 2 दिन पहले शमशान घाट में हुए कत्लकांड की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। इस हत्याकांड को 2 बुजुर्गों के द्वारा अंजाम दिया गया। कत्ल में इस्तेमाल किए गए 2 हथियार भी पुलिस ने बरामद किए हैं। तो वहीं एसएसपी ने पूरी घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी नवनीत सिंह को मारने की कोशिश की जा चुकी है और इन आरोपियों पर पहले भी कई मामले पुलिस में दर्ज हैं। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਵਨੀਤ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ 33 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫਾਇਰ ਹੋਏ। ਉਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਸਪੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਡੀਐਸਪੀ ਸਿਟੀ 1 ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਕੋਤਵਾਲੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਐਸਐਚਓ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਨ 48 ਆਵਰਸ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। एक 315 बोर की राइफल है ते एक 32 बोर का रिवॉल्वर है। 4 जिंदा राउंड रिकवर हुए 315 बोर के वेपन के 10 जिंदा राउंड रिकवर हुए हैं 32।
अमृतसर पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर के निर्देश पर सुल्तानविंड थाने की पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने संधू कॉलोनी में एक घर के बाहर फायरिंग करने वाले 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। ये घटना तब हुई जब युवकों ने घर के बाहर संधू कॉलोनी में स्थित एक मकान पर फायरिंग की, जिस पर एक्शन लेते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। मेरे दोस्तों 24/11/24 ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸੰਧੂ ਕਲੋਨੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਨਗਰ ਦੇ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਥਾਣੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਡਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਤੇ ਗੇਟ 'ਤੇ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮੋਹਨ ਐਸਐਚਓ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਣ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਗੇਟ ਸੀ, ਉਹ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ। ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖੋਲ ਵਗੈਰਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इस वारदात ਨੂੰ ਕਰਨ वाले ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। फरीदकोट में जोतिंदर चौक के पास एक किराने की दुकान से करीब 40,000 की नकदी चोरी किए जाने का मामला सामने आया। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। बताया जा रहा है कि दुकान के मालिक योगेश कुमार किसी काम से बाहर गए हुए थे और दुकान का गेट बंद था। कुछ ही समय के बाद उन्हें जानकारी मिली कि उनकी दुकान में चोरी हुई है, जिसके बाद उन्होंने तुरंत मामले की सूचना पुलिस को दी। मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्तियों में से एक ने दरवाजे को तोड़ा और दुकान में दाखिल हुआ और नकदी चोरी कर अपने साथी के साथ फरार हो गया। तो वहीं ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। डीएसपी त्रिलोचन सिंह ने बताया कि सूचना के बाद पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की शिनाख्त में जुट गई है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खबर फरीदकोट से है, जहां चोरों ने एक दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया और 40,000 रुपए कैश लेकर फरार हो गए। तो यही पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। पुलिस अधिकारियों की ओर से बताया गया कि सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है और फुटेज के आधार पर आरोपियों की शिनाख्त कर जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि दुकान का मालिक कुछ देर के लिए दुकान बंद करके बाजार गया हुआ था। इतनी ही देर में चोरों ने मौके का फायदा उठाकर दुकान का दरवाजा तोड़ा, दुकान के अंदर दाखिल हुए और बड़ी ही बेबाकी से कैश चोरी कर मौके से फरार हो गए। तो ये वही पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है। एक साडे हिंद करियाना स्टोर जतिंदर चौक च ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਕੋਈ 4:30-5 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ। 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਾਈਕ ਤੇ ਲੜਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਘਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਦੀ ਤਾਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੁਕਾਨ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਗੱਲੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲੇ ਜਿੰਨੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਜੀ ਕੱਲ 4:20 ਤੇ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ 4:20 ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ 4:46 ਤੇ ਘਰੋਂ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਆਹ ਕਹਾਣੀ ਪੈ ਗਈ, ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੀ। ਬਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਸੀ? 2 ਜਣੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੂਹਾ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋੜੀ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੰਦ ਪਏ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਖੋਲਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ? ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਸੀ 40-42 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਆ ਹੀ ਉਹ ਦੇਣੀ ਸੀ ਕਿਸ਼ਤ ਥੋੜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ? ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬੂਹਾ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਮਦਰ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਮਦਰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੜਕਾ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦਵਾ ਭੱਜ ਕੇ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।